Hello dear students, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study the remaining part from the chapter heat transfer. So today we will start with the last equipment from the heat exchangers and we will begin with the heat interchangers. Okay, so the last equipment from heat exchanger is nothing but the floating head two pass heater. Okay, so here it is again belongs with the same tubular arrangement, that is in this heater the number of parallel tubes are present. Okay, so its construction is similar like the previous equipments. Okay, means in the previous equipments we have already seen the tubular number of tubes are present, so like that in this floating head to pass heater the number of tubes are present. Okay, so let's start with the construction, that is, and in this floating head to pass heater the source which is responsible to heat the cold solution, okay, or the solution which is to be heated, that source is nothing but the steam. Okay, so let's start with the construction. It consists of the same number of tubes into the equipment. Okay, so it has the bundle of parallel tubes, these are enclosed in the shell. Okay, so here diagrammatically you can see that it consists of a bundle of parallel tubes which is placed in the particular casing. Okay, then right side distribution chamber is proportioned and fluid inlet and outlet are connected to the same chamber. Okay, now what is happening, this is the right side distribution chamber and this is the floating head, this is the another part or another section. Okay, so this the partition is given. Okay, so this is the distribution chamber. So in the right side distribution chamber one इनलेट इज गिवन फॉर द कोल्ड फ्लूइड. ठीक है, ये कोल्ड फ्लूइड अब कौन सा फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड है जिसको हमें हीट करना है. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि फ्लोटिंग हेड और फ्लोटिंग हेड टू पास हीटर. ठीक है, तो ये टू पास हीटर में फ्लोटिंग हेड में क्या, बिकॉज हियर फ्लोटिंग हेड इज प्रेजेंट, दैट्स वाई द नेम इज गिवन फ्लोटिंग हेड. ओके, सो हियर नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब्स विच इज सिचुएटेड इन द पर्टिकुलर casing. Okay, so here in that casing two inlets are present. In that right side, this is the distribution chamber. So in this distribution, in the right side distribution chamber two inlets are present. One is for cold fluid जिसको हमें गर्म करना है and second is for the condensate outlet. Okay, so one side or the left side distribution chamber is not connected to the casing which known as the floating head. Okay, so this is the second distribution chamber. ठीक है, so this second distribution chamber is not connected with the casing and so it is present at this side. Okay, and this is referred as the floating head. Okay, so steam is introduced through the inlet provided to the casing or the shells and provisions are made for escape of non-condensed vapor and an exit for the condensate. ठीक है, so here at the top you can see that one steam inlet is given, one vent is given. For what purpose vent is given? For the escape of the condensates. Okay, sorry, for the escape of the non-condensates and here for the escapes of condensate and here one outlet is present for the हॉट फ्लूइड. ठीक है, यहाँ से आपका कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, फिर ये स्टीम की वजह से क्या होगा, ये ट्यूब्स, ये पाइप्स, ये जो ट्यूब है उसमें हीट एक्सचेंज हो जाएगा थ्रू कंडक्शन. ओके, सो हियर द हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम द स्टीम. ओके, और दिस इज आउटर पाइप्स, यहाँ से आपके इनलेट्स में जिसमें आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. हीट ट्रांसफ़र होने के बाद फ्लोटिंग हेड से जाने के बाद यहाँ से फिर आपका ये आउटलेट में से आपको कोल्ड फ्लूइड जो आपने ऐड किया था सिस्टम में वो हॉट फॉर्म में आपको मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फ्लोटिंग हेड हीटर. ओके, देन वर्किंग, स्टीम इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट. स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि द स्टीम इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम. स्टीम के वजह से क्या होगा, द हीट विल बी एक्सचेंज towards the tubes. Okay, so as the steam flows down the tubes get heated. ठीक है, जैसे ही
आपका स्टीम वो पूरे सिस्टम में चला जाता है, द फ्लूइड विल बी हीटेड. ओके, द कंडेंस्ड वेपर एस्केप थ्रू द बॉटम ऑफ द शेल. जहाँ पे एक प्रोविजन दिया है कंडेंस्ड वेपर के लिए, तो यहाँ से वो कंडेंस्ड वेपर ये बॉटम में से चले जाएंगे. देन आफ्टर दैट फ्लूइड हीटेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हीटर. ठीक है, तो फ्लूइड विल बी हीटेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर. उसके बाद क्या होगा, जो कि राइट साइड में प्रेजेंट है, मीन्स ऑन दिस साइड यहाँ पे. ठीक है, फिर वो फ्लोटिंग हेड से होकर यहाँ से निकल जाएगा. ओके, सो हियर द फ्लूइड इज हीटेड, देन द फ्लूइड रीच टू द फ्लोटिंग हेड एंड चेंजेस द डायरेक्शन. नाउ इट पासेस back to the next part of the partition. That's why it is termed as the two pass, क्योंकि उसको दो बार पास करना है. एक तो इनलेट में से जाएगा वो, और उसके बाद क्या करेगा, फ्लोटिंग हेड तक जाएगा. उसके बाद खुद की डायरेक्शन चेंज करके सेकेंड पार्टीशन के सेकेंड पार्ट में वो चला जाएगा. तो दैट्स why it is referred as the two pass heater. Okay, so fluid in the tubes get heated due to the हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू द मेटल वॉल. अगर प्रिंसिपल पूछा किसी ने कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ योर फ्लोटिंग हेड हीटर, सो इट फॉलोज द कंडक्शन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो कंडक्शन. ओके, सो नेक्स्ट आर द हीट इंटरचेंजर्स. अभी जो हमने पढ़ा दैट इज नथिंग बट द हीट एक्सचेंजर. अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज हीट इंटरचेंजर. ओके, तो एक्सचेंजर में क्या होता है, आपका एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि एक्सचेंज कर रहा है हीट. ठीक है, इसके लिए क्या आपको एक्सचेंजर में सेम सिस्टम का रिक्वायरमेंट था. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज एक्सचेंज इन बिटवीन द वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड और वन गैस टू अनदर gas through a metal wall. That's why it is referred as the heat interchanger. Okay, so the heat medium is hot liquid. वहाँ पे हमने क्या किया था, अभी तक जितने भी हमने हीट एक्सचेंजर पढ़े उसमें हीट सोर्स क्या था, वी हैव यूज्ड द स्टीम एज एन हीट सोर्स, बट इन द हीट interchangers the hot source or the source which is used for heating the cold liquid is your hot liquid. ठीक है, और liquid to be heated is the cold liquid. Okay, now first interchanger is nothing but the liquid interchanger. Okay, so again the basic construction is same as all equipments, that is number of parallel tubes are inserted. There will be a vent for the hot water. ठीक है, क्योंकि उससे हमें आपके कोल्ड वाटर को हीट एक्सचेंज करनी है. एक वेंट रहेगा आपका कोल्ड वाटर के लिए. ठीक है, सो द कंस्ट्रक्शन आर सेम बट सर्टन मॉडिफिकेशन आर डन इन केस ऑफ द लिक्विड इंटरचेंजर. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन. नॉर्मली द ट्यूब शीट्स, spacer rod and baffles are assembled first and then the tubes are installed. ठीक है, ट्यूब शीट्स, स्पेसर रॉड्स और बैफल्स लगेंगे इसमें इन दिस लिक्विड इंटरचेंजर्स. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एनहांस करने के लिए. ठीक है, ये क्या करता है, ये जो ट्यूब शीट, स्पेसर रॉड्स एंड बैफल्स रिस्पॉन्सिबल है कि वेलोसिटी बढ़ाएगा. ठीक है, और उसके बाद नहीं क्या, टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, हाई स्पीड में टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, जो कि हमने पढ़ा था कि ईडीज आर फॉर्म्ड इन द टर्बुलेंस, जो कि हाई स्पीड में यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग में पढ़ा था ना हमने टर्बुलेंस. सो यहाँ पे भी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, ईडीज फॉर्म होगा और क्या होगा, फास्टर आपका कोल्ड सॉल्यूशन, कोल्ड लिक्विड हॉट हो जाएगा. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ट्यूब शीट्स, स्पेसर रॉड्स एंड बैफल्स आर first assembled and then the tubes are installed. Okay, on each side of the tube two distribution chambers are provided. Then left side of chamber contains an inlet for the fluid to be heated and the outlet of the hot fluid is provided at the center of the right side distribution chamber. डायग्राम से आपको ख्याल में आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से लेंगे हम कि हियर द कोल्ड लिक्विड इनलेट इज प्रेजेंट. ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द ट्यूब शीट्स. ये क्या है, ट्यूब शीट इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ ट्यूब्स. ओके, सो हियर द बैफल्स आर प्रेजेंट. बैफल्स की वजह से क्या होगा, फास्टर एजिटेशन, यहाँ पे फास्टर घूमेगा वो आपका हॉट लिक्विड. ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, हाई स्पीड मिलेगा, उसकी वेलोसिटी एनहांस होगी. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द स्पेसर रॉड, स्पेसर ट्यूब्स. ओके, एंड दिस इज द ड्रेन. अगेन
यहाँ से आपका टॉप में से, सपोज ये टॉप मान लो, ये बॉटम मान लो, ठीक है, तो ये टॉप में से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो कोल्ड लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, ट्यूब शीट्स लगी हुई है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो ये ट्यूब शीट्स में क्या प्रेजेंट है आपका, कौन जाएगा यहाँ पे, कौन प्रेजेंट है, दिस वे एंड दिस वे, द आउटलेट सॉरी द इनलेट फॉर द हॉट लिक्विड, यहाँ से क्या आएगा कि आपका हॉट लिक्विड पास होगा, फिर हीट ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होगी, और यहाँ से आपका हॉट लिक्विड बाहर जाएगा, ठीक है। सो हियर द बैफल्स आर प्रेजेंट एंड एट द बॉटम आपका यहाँ से चलते हुए हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हॉट लिक्विड प्रेजेंट है, हीट ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे जो आएगा आपका कोल्ड लिक्विड, वो की हीटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द लिक्विड लिक्विड इंटरचेंजर वर्क्स, ठीक है। लिक्विड लिक्विड बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड लिक्विड क्यों बोला है, यहाँ पे हॉट सॉल्यूशन यूज करते हैं आपके कोल्ड फ्लूइड को हीट करने के लिए। ओके, देन वर्किंग द हॉट फ्लूइड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टॉप ऑफ द शेल्फ। ओके, यहाँ पे क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में से आपका हॉट फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द इक्विपमेंट, देन फ्लूइड फ्लो आउटसाइड द ट्यूब एंड मूव डाउन टू द बॉटम, क्योंकि टॉप में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे इनलेट, बॉटम में क्या प्रेजेंट है आपका आउटलेट, ठीक है। बैफल्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब, ठीक है। बैफल्स किस चीज़ के लिए काम में आएंगे कि बैफल से क्या होगा आपका वेलोसिटी फ्लूइड का बढ़ जाएगा। ओके, मतलब रेट उसका फास्टर हो रहा है ज़्यादा, विच क्रिएट्स मोर टर्ब्यूलेंस एंड दिस हेल्प्स रेजिस्टेंस टू द हीट ट्रांसफर आउटसाइड द tube. Okay, so these baffles will increase the velocity of the fluid, and due to the high velocity, high intensity of the fluid flow, the turbulence will be generated. Okay, so the baffles get heated and provides greater surface area for the heat transfer, ठीक है, क्योंकि baffles क्या होगा ऑलरेडी हॉट लिक्विड की वजह से खुद वो हीटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, सो इट विल प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द कोल्ड लिक्विड for their heating purposes. Okay, so the flow of liquid is single pass, जो कि हमने डायग्राम में देखा है, हमें समझ में आ गया कि वो मल्टी पास है क्या, नहीं, it is the single pass flow. Okay, advantages, passes at high velocity outside the tube. Okay, then next interchanger and the last interchanger is double pipe heater interchanger. The name itself indicates that one pipe is merged into the another pipe, means two pipes are present, that's why it is referred as the double pipe heat interchanger. Okay, so in this the two pipes are used, one is inserted in another, ठीक है। इसमें क्या होगा कि two pipes are used and one pipe is inserted into the other pipe. Okay, the inside pipe is head for द पंपिंग ऑफ कोल्ड लिक्विड टू बी हीटेड, आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द इनसाइड पाइप, ये जो फर्स्ट, सीधा आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए ये इस पे, ठीक है, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो सेकेंड है ना, सेकेंड इज नथिंग बट द इनसाइड पाइप विच इज इंसर्टेड इन बिटवीन द टू पाइप्स। ओके, जिसको इंसर्ट किया है हमने दो पाइप के बीच में, मतलब ये बीच में से जो आपका वेंट दिख रहा है आपको, जहाँ से मैं रास्ता बना रही हुई, यहाँ से क्या जाएगा आपका कोल्ड लिक्विड, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका कोल्ड लिक्विड जाएगा, बाहर क्या प्रेजेंट है आपका हॉट लिक्विड, तो इससे हीट इंटरचेंज हो जाएगी हॉट लिक्विड से कोल्ड लिक्विड तक। ओके, सो द आउटर पाइप, inside pipe will act as a inlet for your cold liquid. Okay, the outer pipe acts as a jacket for the circulation of hot liquid. outer pipe में क्या present रहेगा, outer pipe will act as a jacket for the circulation of your hot liquid. outer pipe में से आपका hot liquid पास होगा, outer pipe में से heat आपकी inner pipe में ट्रांसफ़र होगी, मतलब इनर पाइप आउटर पाइप के बीच में प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी आपके इनर पाइप में, जिसमें आपका कोल्ड लिक्विड प्रेजेंट है। तो दिस इज हाउ द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर जैकेट where the hot liquid is present towards the inner jacket where your cold liquid is present. Means here in this case the heat is exchanged by the conduction, ठीक है, means here the conduction mechanism is followed and by following that conduction the heat is transferred from the hot liquid to the cold liquid in a metal casing. Okay,
So all jacketed section are interconnected. Why? Because for the heat exchange purposes. Okay, so glass tubes, standard iron pipe or graphite constructions are available. Means in case of the double pipe interchanger, the material or the tubes can be made up from the glass, standard iron pipe or the by using the graphite. This type of double pipe heat exchangers are constructed. Okay, so this is the कंस्ट्रक्शन विच इज़ वेरी सिंपल वन. सिर्फ आपको याद रखना है कि दो पाइप होते हैं और एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, जो इनसाइड वाला पाइप है दैट विल एक्ट फॉर द एक्ट एज एन इनलेट फॉर द कोल्ड लिक्विड, और जो आउटर पाइप है इट विल एक्ट एज एन इनलेट फॉर द हॉट लिक्विड. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. नाउ working is very again simple. The hot liquid, that is the heating medium, is pumped into the jacketed section. जो बाहर वाला जिसको हम आउटसाइड पाइप बोल रहे हैं, जिसमें आपका इनसाइड पाइप को इंसर्ट किया है, दैट आउटसाइड पाइप इज नथिंग बट योर हीटिंग मीडियम, जहाँ से आपको हॉट लिक्विड पंप करना है इनटू दैट जैकेटेड सेक्शन. ओके, द हॉट फ्लूइड is circulated through the annular spaces between them and carried from one section to the next section. Okay, जो कि ये spaces है यहाँ पे, उसमें से क्या करेगा वो, it will flow and carried from one section to the another section. Okay, and finally it leaves the jacket. In this process the pipes get heated while the hot fluid loses its टेम्परेचर. अगेन उसका काम क्या है, हीट एक्सचेंज करना. हीट एक्सचेंज करके उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और सिस्टम में से वो बाहर चला जाएगा. ठीक है, पर उसका काम क्या था कि जिस पाइप में से उसका फ्लो हो रहा है उस पाइप को वो क्या करेगा, खुद का हीट ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, जो कि उसने किया है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो सिस्टम में से बाहर चला जाएगा. ओके, सो द लिक्विड टू बी हीटेड इज पम्प्ड थ्रू द इनलेट प्रोवाइडेड एट द राइट साइड, जो कि इनसाइड ट्यूब है आपकी. वहाँ से आप क्या करोगे, आपका कोल्ड लिक्विड को सिस्टम में डालोगे, जिसके बाद आपका वो आउटर पाइप खुद का हीट उससे एक्सचेंज करके उसको क्या करेगा, हीट बना देगा, मतलब हॉट बना देगा. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आपका कोल्ड लिक्विड इज नाउ इन द हॉट फॉर्म. मतलब क्या होगा, आपका हीट एक्सचेंज हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, आपका हॉट लिक्विड ने आपके कोल्डर लिक्विड को हीटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डबल पाइप इंटरचेंजर्स. ओके, नाउ द लिक्विड गेट्स हीटेड अप एंड फ्लो थ्रू द बेंट ट्यूब्स इनटू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पाइप. ठीक है, मतलब उसको मूवमेंट करेगा. क्यों मूवमेंट करेगा, क्योंकि उसको आउटलेट तक जाना है, खुद को हीट करके आउटलेट तक जाना है. सो फॉर दैट पर्पज, ओके, the liquid further gets heated and the same liquid continues to flow and finally leaves the interchanger through the exit point on the right side. ठीक है, अब लिक्विड फ्लो करेगा. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से आउटलेट फॉर द कोल्ड लिक्विड विच इज टर्न्ड हॉट by exchanging the heat from the hot liquid, it became hotter and it will exit from this vent. Okay, so this is all about the heat transfer. We have studied the introductory part of the heat transfer, then the mechanism which are used in the heat transfer, that is conduction, convection and radiation. After that the application of heat transfer की application कहाँ कहाँ heat transfer का ज़रूरी है. तो क्या, in case of the distillation, evaporation, crystallization, ये सब जगह पे हम heat use करते हैं ना. So here that are the application of your heat transfer in pharmaceutical इंजीनियरिंग की. हम जो यूनिट प्रोसेसेस है, आपका यूनिट ऑपरेशंस है, उन यूनिट प्रोसेसेस ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए हम ये हीट ट्रांसफर यूज करते हैं. एग्जांपल, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन एक्सेट्रा. उसके बाद वी हैव स्टडीड द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हीट ट्रांसफर, दैट इज इन टू फॉर्म्स. सर्टन इक्विपमेंट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसमें आपको सेम मीडियम में हीट एक्सचेंज करना है, एंड सम आर द हीट interchangers. Okay, so that's it for today's lecture. Thank you very much.